All right. A very good morning to one and all. Before we start off, I would request the teachers, can you please calm down the students a little bit so that the parents can hear clearly what exactly are we discussing over here. All right. A very good morning to one and all parents. First of all, I would like to thank the management here for giving us this opportunity to talk about what exactly is the new thing that is going to come up in our school for the next upcoming academic year. On that note, before we start off, I really would like to ask you a simple question. What exactly do you want, or what is that you are expecting by sending your child to school? Anyone can say. Why are we sending children to school? Why? I think parents in the front row probably you can answer. Why are you sending your child to school? What is your expectation? Good education? Okay. Good education leads to what? A very good education leads to what? Sorry? Okay. All right. Students will be learn more and very nice in school because they will expend more time in school Absolutely. compared to home. So that's why we are sending to school. Fantastic. So basically you are saying that one, they spend more time in the school, so they learn a lot in the school. Yes, sir. Okay. They learn a lot, they get good education, then what? Cooperation, how to mingle to other students. They all are learn in school only. Very good. No, they are learning all these things in school. After learning all these things in school, what is that your expectation? So what? More well educated our children. They become a successful in her life. Fantastic. Big round of applause for the ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. So basically, we send children to schools, one, to have a good quality education. Two, to become successful in their career. It could be any career, engineering, doctor, creative, art side, anything it could be, but they have to be successful in career. And when good education is there, a successful career is there, it leads to a fantastic, successful, smooth, happy life. Am I right? That is all we all want? Perfect. So moving on, can we move on please? Can we move on please? Yes. So basically these are the three things that you guys said now. Good education, a great career, and a happy, successful life. Fantastic, you are bang on parents. But let me tell you on that note, first of all, I would like to congratulate you all because our school, Providence School, has chosen a program which is the best curriculum in India as on date. And congratulations parents, your child is one of the best schools now. I would like you to request you to give a big round of applause. So parents, welcome to the world of Pinnacle. Please move on. Move on. So this is the best educational curriculum program that I was referring to, which is called as Pinnacle Plus. Move on please. Move on. Move on. Can you just populate all the 6 pointers? Thank you. 1. This particular program consists of 6 aspects, parents. I will not take much time because it's an annual day. You have come to see your child's performance. I will not bore you with my talk, but I will give you the essence, or rather the flavor of what is this program all about and why is that our Providence School has chosen this. First thing, it has got internationally acclaimed Pearson titles, high quality curriculum, books. All the books are NCF and NEP aligned. And I'm not sure if most of you parents are aware or not, Pearson has got a history of 175 years. World's largest educational company, 70,000 employees with 40 countries presence. And that's the same product that our school has chosen as books to our students. Big round of applause, guys. Big round of applause. Okay, cool. Sure.
तो ये रही बात अभी अभी अपना बुक्स के मामले में। नेक्स्ट आते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग। यहाँ पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स, ऑल बच्चे ना, ऑल किड्स आर नॉट सेम इंटेलिजेंस, दे डोंट हैव। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सुनने में फटाक से ग्रास्प कर लेते हैं, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पेन पेपर पे लिखने से ही उनको समझ में आता, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको कुछ वीडियो दिखाए तो समझ में आता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं एक एक्टिविटी करो उनसे तब समझ में आएगा, एक रियल टाइम एग्जाम्पल दे दो कॉन्सेप्ट का तब समझ में आएगा। तो ऐसे सारे डिफरेंट इंटेलिजेंस होते हैं बच्चों में, पर टीचर तो एक ही है। अब टीचर कैनॉट टीच इन 5-6 डिफरेंट स्टाइल्स इन 40 मिनट्स ऑफ क्लासरूम। तो टीचर को भी एक ऐसा प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसमें द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज गिवन इन फॉर ऑल द लर्नर्स, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज हैंड्स ऑन लर्निंग। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्कूल इज गिवन ए स्कूल एक्टिविटी किट। सारे कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं उनमें थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो टीचर के लिए भी थोड़ा टफ हो एक्सप्लेन करने में, तो वहाँ पे हम एक्टिविटी के रिसोर्सेज देंगे टीचर को। उस एक्टिविटी के रिसोर्सेज के हिसाब से ना टीचर कैन परफॉर्म दोज एक्टिविटीज एंड मेक अंडरस्टैंड चिल्ड्रन सो दैट देयर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज बेटर। तो ये रही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और तीसरी बात ये है कि AI पावर्ड असेसमेंट्स एंड रेमेडियल्स। अब पूरी दुनिया में, आई होप यू ऑल आर अवेयर, यू वुड हैव हर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीवेयर, चैट GPT ये वो बोल के बहुत सुन रहे हम। अब इतना आगे बढ़ रहा दुनिया, तो हमारा स्कूल, हमारे बच्चे क्यों पीछे बैठना, फिर हमको भी आगे बढ़ना है। तो ऑल द क्वेश्चन पेपर्स टीचर्स वुड बी जनरेटिंग, ऑल द करेक्शन दे विल डू, दे विल अपलोड द मार्क्स ऑन टू द सिस्टम। एक बार मार्क्स अपलोड कर दिए ना तो सिस्टम खुद रिपोर्ट भेजेगा कौन सा बच्चा कौन सा टॉपिक कॉन्सेप्ट में वीक है। बेसिस दैट रेमेडियल प्लान ऑल्सो द सिस्टम थ्रोस आउट। दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। और इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स, द NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है, इट इज एम्फसाइज सो मच ऑन असेसमेंट्स। पढ़ने या पढ़ाई जो भी हो, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है असेसमेंट, इवैल्यूएशन। सही तरह का असेसमेंट या इवैल्यूएशन किए ना हम, बच्चे का एक्चुअल कॉम्पिटेंसी पता चलेगा। सो असेसमेंट्स प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, and in assessments we have got artificial intelligence. Basically it is all technology driven. The product is full of technology for the students, for the teachers. Fourth one, audio visual learning. Like I said, sare classes, and you should again give a big round of applause to the school, because school has invested in 50-inch TVs in every classroom. This is just to make that the teachers can show the visual content, videos, audios, animations, all these things in the classroom for the students. सारे बच्चे अभी वीडियोस देख पाएंगे, ऑडियोस सुनेंगे, एक्टिविटीज करेंगे क्लास में। अब दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए कंस्ट्रक्टिव और पर्पसफुल क्लास, राइट? तो ये भी होगा, ऑप्शन है अभी प्रोग्राम में। फिफ्थ वन इज कनेक्टेड एट होम लर्निंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा ये। आई होप एवरी पेरेंट हैज़ ए स्मार्टफोन। आप बिना स्मार्टफोन का कोई नहीं है, एवरीवन इज हैविंग ए स्मार्टफोन, जो भी हो, बेसिक हो, हाई एंड हो, जो भी हो, पर स्मार्टफोन तो है अभी। तो हर एक पेरेंट ऐप में, पेरेंट फ़ोन में एक स्टूडेंट ऐप इंस्टॉल करेंगे हम। सारा लर्निंग जो होता है स्कूल में, वही पढ़ाई, वही वीडियोस, वही ऑडियोस, एवरीथिंग बच्चा घर पे भी देख सकता है। ये किस लिए कर रहे हैं हम बोले तो, घर पे बैठ के यूट्यूब, फेसबुक देखने से बेटर ये है, वीडियोस देखेगा, ऑडियोस देखेगा, गेम्स खेलेगा, ये सब सिलेबस और कंटेंट और स्कूल के चैप्टर्स के ऊपर खेलेगा वो बंदा। ये तो सही है अभी। नंबर 2, ये इसको थोड़ा गेमिफाइड कर चुके हम। व्हेन आई से गेमिफाइड, सारे बच्चों को ना वीडियो गेम खेलना पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है। तो इस ऐप में अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, शशिकांत एक स्टूडेंट है स्कूल का, मैं लॉग इन करूँगा। एज सुन एज आई लॉग इन, मैं देख सकता हूँ मेरा सेक्शन का कोई बच्चा अवेलेबल है क्या, मेरा दोस्त ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन है तो ग्रेड 5 का बच्चा हूँ मैं, ग्रेड 5 फ्रैक्शंस चैप्टर में मैं उसके साथ गेम खेलूँगा। गेम में मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे, इस पॉइंट्स के हिसाब से हम फ्री गिफ्ट्स भेजेंगे बच्चे को, सो दैट टू एनकरेज एंड बूस्ट हिम।
सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, सब मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है हमको कि बच्चा फ़ोन लेके यूट्यूब ना देखे, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ाई कर रहा है। इतना पेरेंट होते आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज रिगार्डिंग कनेक्टेड एट होम लर्निंग। एंड फाइनली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेशनल लेवल एक्सपोजर। अब पेरेंट्स, हमारे बच्चे यहाँ पे प्रोविडेंस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चा अभी इस 5th ग्रेड ए सेक्शन में रॉक स्टार है, ठीक है मानता हूँ, पर जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने वाला है फ्यूचर में, ये कोई 5A सेक्शन का तो नहीं है, पूरा इंडिया होगा उस पर। अब पूरा नेशनल लेवल पे हमारा बच्चा कहाँ है हमको कैसा पता चलेगा? सो टू अंडरस्टैंड दैट वी विल कंडक्ट नेशनल लेवल चैंपियनशिप टेस्ट। इस साल नेशनल लेवल चैंपियनशिप टेस्ट में 19 लाख स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, पेरेंट्स 19 lakhs, and we want Providence school students also to participate in this national level championship test. What other things are given in this मैं आपको बताता हूँ. Can we please move on? So ये है Pinnacle books which I said critical thinking skills will be developed using these books. All books are NEP NCF aligned. Move on please. Move on. तो ऐसा रहेगा टिपिकली क्लासरूम जहाँ पे हर टीचर को एक टैब दिया जाएगा. टैब में पूरा कंटेंट होगा, लेसन प्लान्स होगा, वीडियोस होंगे, ऑडियोस होंगे, सब चीज़ें होंगे. उस टैब के कंटेंट को टीवी पे कास्ट करेगी टीचर और बच्चे विजुअली देखेंगे सारा. इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, पेरेंट्स. मूव ऑन. गो बैक. टिपिकली एक छोटा सा स्कूल था रूरल इंडिया में, वहाँ का क्लासरूम ऐसा है. अब एक रूरल गांव में स्कूल ऐसा है विद टीचर यूजिंग ए टैब, बच्चे टीवी में पूरा वीडियोस देख रहे, 3D एनिमेटेड वीडियोस. तो हमारे स्कूल में तो बेहतर रन होगा प्रोग्राम, बढ़िया रन होगा. मूव ऑन. ये रहा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात जो मैं कर रहा था. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो रिसोर्सेस है, पाई चार्ट्स, कार्ड्स, ग्लोब, फोटोसिंथेसिस दिखाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे ऑल द मटेरियल्स वुड बी गिवन एंड टीचर विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स. वो टीचर अकेले परफॉर्म नहीं करेगी, उससे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा. टीचर विल मेक दैट एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द किड्स इन द क्लासरूम. ये है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. मूव ऑन प्लीज. तो पेरेंट्स, दिस इज द एक्टिविटी किट आई एम रेफरिंग टू. हर एक बच्चे को बुक्स के साथ एक एक्टिविटी किट भी दिया जाएगा. एवरी किट हैज गॉट एक 30 to 40 एक्टिविटीज रिलेटेड रिसोर्सेस. घर पे बच्चा, दिस इज जस्ट टू एंकरेज इंडिपेंडेंस. क्लास में तो स्कूल में तो टीचर पढ़ाती है, घर पे होमवर्क में थोड़ा मदद करते हैं, पर बच्चे को ना उस कॉन्सेप्ट में एक और राउंड ऑफ एक्टिविटी खुद अपने को बैठ के करना पड़ेगा. वी हैव टू एंकरेज दैट. ओनली देन दैट इंडिपेंडेंट लर्निंग आएगा बच्चे को. तो टू फैसिलिटेट दैट वी विल ऑल्सो गिव एवरी स्टूडेंट को इंडिविजुअली खुद का सेपरेट एक एक्टिविटी किट भी मिलेगा बुक्स के साथ. मूव ऑन प्लीज. दिस इज द ऐप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मूव ऑन. नेक्स्ट नेक्स्ट. दैट्स इट. सो यहाँ पे फ़ोन पे आपको ऐप होगा. ऐप के अंदर लॉगिन होने से गेमिफाइड लर्निंग जो मैं बोला हूँ, आपको एक्सप्लेन किया हूँ, दे कैन प्ले विथ अदर किड्स, हिज ओन फ्रेंड्स. अगर कोई ऑनलाइन नहीं है, प्रोविडेंस स्कूल का बच्चा, आपका बच्चा कैन प्ले द सेम फ्रैक्शंस चैप्टर पे एक प्रैक्टिस टेस्ट पे गेम. ही कैन प्ले विथ ए गाय सिटिंग इन उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. ही कैन compete with anyone in India. That is the beauty of the product. Unlimited practice questions will be there in the app. बच्चा जितना भी प्रैक्टिस करना चाहता है कर सकता है. And teacher will give after every chapter एक प्रैक्टिस वर्कशीट या टेस्ट. टीचर विल सेंड ए नोटिफिकेशन ऑल्सो. स्मार्ट होमवर्क चैप्टर होने के बाद होमवर्क शीट्स विल बी देयर इन द ऐप. बस डायरी नोट भिजवा जाएगा, बच्चे को नोटबुक निकाल के उस वर्कशीट में जो भी क्वेश्चंस है वो होमवर्क करना है. लर्निंग वीडियोस जो भी टीचर क्लासरूम में दिखाई, जो भी टीचर वॉट एवर वीडियोस ऑडियोस शी हैज प्लेड. कुछ थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा स्टेज फियर होता है,
they feel shy to ask a question raising hand. For those kids, at least go back home, आराम से at his own pace खोलो, जो भी टीचर पढ़ाई वीडियोस दिखाई एक बार देखो, समझने की कोशिश करो, फिर भी डाउट्स है तो पूछो टीचर से. बट दैट प्रोविजन इज गिवन नाउ. कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट. इसके बारे में हम बात कर चुके. इनिशियली व्हाट आई सेड, असेसमेंट्स एंड रेमेडियल्स. सो सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाने का, जनरेट करने का ऑप्शन टीचर्स के पास है. टीचर कैन प्रिपेयर इट इन 3 डिफरेंट लेवल्स, इजी, इंटरमीडिएट, हाई स्टैंडर्ड पेपर. जैसे प्रिपेयर करना चाहते वैसे प्रिपेयर कर सकते. हर एक क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स एंटर करो, रिपोर्ट आ जाएगा, वीक एरियाज पता चल जाएगा. जहाँ जहाँ वीक एरिया है वहाँ वहाँ टीचर विल फोकस, और ड्यूरिंग पेरेंट टीचर मीटिंग आपको भी बोला जाएगा, यू कैन ऑल्सो फोकस लिटिल बिट. बट यहाँ पे हमको प्रोविजन है टू अंडरस्टैंड, टू नो वेयर इज द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट. मूव ऑन प्लीज. दिस इज द लास्ट थिंग विच आई स्पोक अबाउट. One is the national championship test. This is what I said. 1.9 million students have written last month this championship test. For top performers, we have given scholarships also. Free education, free fees, sponsored, funded by our company. ये option भी है इसमें. Move on please. This is another beautiful program which Providence School has chosen. Moving forward for the upcoming academic year, एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे यू विल बी गेस, आपके बच्चे विल बी द प्रेजेंटर्स टू यू. ऑल द प्रोजेक्ट्स और द टॉपिक्स दैट दे हैव प्रिपेयर्ड ऑन, और द सब्जेक्ट हो जो भी हो, बच्चे पेरेंट्स को प्रेजेंट करते. इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस पेरेंट्स. ट्रस्ट मी, आई एम श्योर यू विल लव इट. अभी तक ना बच्चा कैसे बिहेव करता क्लास में, आंसर देता कि नहीं, एलोक्यूशन कंपटीशन में कैसे बोला, हमको मालूम नहीं है. पर यहाँ पे साल में एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे पेरेंट्स विल बिकम गेस्ट, स्टूडेंट्स विल बिकम प्रेजेंटर्स. इट गिव्स अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बच्चे में. ऐसे ही चलता रहा ना, बाय द टाइम बच्चा एक 6th to 8th ग्रेड तक आने लेवल पे ना, ही विल बिकम सुपर कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग में. Next please. Sankalp. Sankalp is an initiative of our organization. Sankalp इस प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि अब बच्चे, टिपिकली पेरेंट्स, यू शुड आंसर मी दिस क्वेश्चन. व्हाट ऑल करियर ऑप्शंस आवर स्टूडेंट्स हैव? 10th क्लास हो गया, इंटरमीडिएट हो गया. इंटरमीडिएट होने के बाद क्या करेगा बच्चा? व्हाट ऑप्शंस ही हैज? Anyone can say. इंटरमीडिएट के बाद क्या करेगा? What options? He can go with the medical or engineering. इंजीनियरिंग एक है. If not engineering, then medical और ठीक है, मैं मानता हूँ इंजीनियरिंग मेडिकल स्टैंडर्ड है. IIT जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नहीं तो नीट एग्जामिनेशन, यही लिखेगा 60% बच्चे. सो पेरेंट्स, एक बात आप समझ लिए, आई हैव ऑल्सो डन माई इंजीनियरिंग एंड MBA. आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ मैं. 4 साल सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ना, जब कैंपस प्लेसमेंट होता, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, जो भी हो, companies will be 4 major companies will come. Infosys, TCS, Cognizant, Wipro. सारे स्पेशलाइजेशन के बच्चे अटेंड होते. उसका सिविल लाइन है, सिविल का IT से कुछ लेना देना नहीं है. बट पीपल विल अटेंड, देन ही विल गेट ए जॉब. बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट, एक बच्चा सब्जेक्ट नॉलेज भयंकर है, सुपर सब्जेक्ट नॉलेज है, पर कम्युनिकेशन वीक है. अब इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने सारे बच्चे हैं कि कंपनी का HR इंटरव्यू करते करते मर जाते. ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो क्या करते हैं? सिंपल, एक बड़ा ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन, जो भी बात करेगा उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो भी बात नहीं कर पाएगा रिजेक्टेड. इजी वे टू फिल्टर फॉर HR ऑल्सो. अब यहाँ पे आप बताइए, सब्जेक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, आई एग्री, बट मोर देन सब्जेक्ट नॉलेज, व्हाट इज प्लेइंग ए मेजर रोल? He should be very active
कम्युनिकेशन स्किल्स, Communication skill. कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, सब्जेक्ट कम है, ट्रेन कर सकते हैं हम, ग्रूम कर सकते हैं, ले लेंगे, हायर करेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज भयंकर है, कुछ भी बात नहीं कर सकता। अब इसको कहाँ लेंगे भाई कॉर्पोरेट में हम, इसको अब इंग्लिश सिखाएं बिठा के, ये तो नहीं होगा। तो बेसिकली द इंपॉर्टेंस हियर इज इंग्लिश। आई एम जस्ट टॉकिंग दिस टू गिव यू ए सेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। ये संकल्प प्रोग्राम इज प्रिडोमिनेंटली टू इम्प्रूव स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश स्किल्स इन स्टूडेंट्स। कैसे होगा? 24 आवर्स है दिन में, 24 आवर्स में 8 घंटे बच्चा सोता है, 8 घंटे स्कूल में रहता है, 16 आवर्स खत्म। अब बचे 8 घंटे, ये 8 घंटे बच्चे आपके साथ घर पे है, जहाँ पे स्कूल या टीचर को कोई कंट्रोल नहीं है। टीचर और स्कूल को 8 घंटे पे कंट्रोल है, बाकी 8 घंटे आपके ऊपर है अभी, राइट। सो टू इनेबल दिस इंग्लिश व्हाट वी हैव डन इज वी हैव चूजन 15 वीक्स, 15 हफ्ता साल में। एवरी वीक टीचर विल ट्रेन द स्टूडेंट्स ऑन ए न्यू कॉन्सेप्ट। एक सिचुएशन एग्जांपल दूंगा मैं आपको। टीचर एक वन पर्सन ऑन द फोन कॉल, एक और बच्चा ऑन द अदर पर्सन ऑन द फोन कॉल। फोन कॉल आया तो कैसे उठाना? हाय, दिस इज शशिकांत स्पीकिंग, मैं नो हु इज द अदर पर्सन ऑन द लाइन। ये बेसिक टेलीफोन मैनर्स है, एटिकेट है, ये सब बच्चों को आना है, सिखाना है। सिमिलरली देयर आर मेनी सिनेरियोस, ऑल दीज थिंग्स पे ना रोल प्ले करके हम सिखाते बच्चे को, ताकि 1-2 साल के बाद ना एटलीस्ट द चाइल्ड विल बी गुड इन स्पोकन इंग्लिश। नंबर 2, एक ऐसा कार्यक्रम करते हम यहाँ पे, लेट्स से बच्चे को गांधी जी का एक कैरेक्टर दे दिए। अब टीचर विल गो विद द स्टूडेंट टू द सराउंडिंग एरियाज, हाउसेस ऑफ द स्कूल। बच्चा खुद जाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, बोलेगा कि मैं प्रोविडेंस स्कूल से आया हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है, आई हैव कम टू टॉक अबाउट दिस। एक कम्युनिटी सर्विस जैसा होता है, इससे कम्युनिटी सर्विस हो रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है, बच्चे को भी कॉन्फिडेंस हो रहा है। बच्चा स्ट्रेंजर से बात कर रहा है, फ्रेंड या टीचर से नहीं, नोन पर्सन नहीं, अननोन पर्सन, एक स्ट्रेंजर से बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। इससे एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे को। नाउ आई सी लॉट ऑफ किड्स आर परफॉर्मिंग हियर ऑन द स्टेज, वॉट एवर डांस परफॉर्मेंस आई हैव सीन, द लास्ट वन वॉज एन LKG किड्स का परफॉर्मेंस। देयर इज वन चाइल्ड इन द फ्रंट, आई डोंट नो हुज किड, व्हाट्स हर नेम, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड वो हंसती रही। It was amazing to see her. Of all the children, there is one girl. बाकी बच्चे थोड़े नर्वस होंगे शायद, slowly they got the confidence, they also started smiling. But एक बच्ची थी, before start of the dance till the end of the dance, हंसती रही वो, enjoy कर रही थी। अच्छा परफॉर्मेंस की, कॉन्फिडेंस लेवल देख के बड़ा मजा आया मेरे को। तो मैं तो आगे बैठा हूँ तो मुझे तो क्लियरली दिखाई दिया, and I have taken the video of it also, just to show it somewhere else. This is how kids are. So parents, this is what is Sankalp program. So basically all these things are part and parcel of Pinnacle Plus. Can we please move on? High quality curriculum, hands-on learning, AI-powered assessments and remedials, audio-visual learning, corrected at home learning, confidence building exposure measures. All these things put together is Pinnacle Plus, and this is what parents, the school has decided for our school for the upcoming academic year 25-26. Big round of applause, please. So अभी तक parents, I really didn't want to take your time because ये annual day है, पर आपको एक flavor तो दिया हूँ मैं। बाकी सब, if at all I get another opportunity, मिलने का मौका मिला तो we can discuss in detail. अभी के लिए if any parent has any questions, please feel free to ask. अगर कोई क्वेश्चंस है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप पूछ सकते। लुक्स लाइक ऑल आर ईगर फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग प्रोग्राम। तो हम जाएंगे फिर। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, एंड थैंक्स मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू।